Carry on where we stopped last week. जहाँ हम पिछली बार रुके थे वहीं से आगे चलेंगे. We began to speak on growing in the knowledge of God. हमने इस बात पे मनन करना शुरू किया था परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ना. At the point of time we turn to Christ, we've just come to know the Lord. It's the starting point of our Christian life. और जब हमारा उद्धार होता है तो वहां हम प्रभु को जानना शुरू करते हैं, हमारी शुरुआत होती है. Accepting Christ as Savior and Lord is for many people the end of a search, but the beginning of a new life. और बहुत से लोगों के लिए प्रभु को जानना जो है एक खोज का अंत होता है, पर एक नए जीवन की शुरुआत होती है. And in this new life, we never stop growing in the knowledge of God. और इस नए जीवन में हम परमेश्वर ज्ञान में कभी बढ़ना, उसके ज्ञान में बढ़ना कभी हमारा खत्म नहीं होता. The Apostle Peter in the second letter in chapter 3 verse 18 is exhorting the church to grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. और दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय 18वीं आयत में पत्रस जो है कलीसिया के लोगों को उभार रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाएं. And last week we spoke about how people like Moses and Paul were never satisfied or complacent about the knowledge of God. और हम देख रहे थे कैसे पौलुस और मूसा जो था वो परमेश्वर के ज्ञान का जो उनका उसमें कभी वो संतुष्ट नहीं थे, या उसमें वहीं जहां पे थे वहीं पे नहीं रह गए. They all realized, and we also realize today, that there's no limit to knowing God. While living in this world, we see only a poor reflection. When he comes the second time, we'll see him face to face. और हम जो है प्रभु को जानने में हम उसमें कभी पूरा नहीं होता. जब प्रभु दूसरी बार आएंगे तब उसको आमने सामने देखेंगे. And last week we discussed about Moses, how when God told Moses he had found favor in the sight of God. और जब मूसा के बारे में पिछली बार देख रहे थे जब परमेश्वर ने उसको बोला कि तू मेरी नजर में प्रतिष्ठित ठहरा है. Exodus 30 chapter verse 13, he responds by saying, if I have found favor in your sight, teach me your ways that I might know you and continue to find favor with you. 33 verse 6 brother. Verse 13, 33:13. 33वां अध्याय उसकी 13वीं आयत में हम पढ़ते हैं परमेश्वर वो कहता है कि मैं तुम्हारे सॉरी Exodus 30 chapter verse 13. या वो कहता है यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जैसा मैं तेरा ज्ञान पाऊं और तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे. As we hear the word of God, we grow in his knowledge. जब परमेश्वर के वचन को सुनते जाते हैं हम उसके ज्ञान में बढ़ते चले जाते हैं. And last week we spoke about how through the word of God he reveals himself to us. और पिछली बार हमने देखा था कैसे परमेश्वर अपने वचन के द्वारा से अपने आप को हम पे प्रकट करते हैं. To the example of Samuel in the Bible, where God revealed himself to Samuel through his word. 1 Samuel 3:21. और पहला शमूएल 3:21 में देखा था परमेश्वर ने कैसे शमूएल को अपने वचन के द्वारा उसके ऊपर अपने आप को प्रकट किया. And knowing God means knowing the nature of God, the likes and dislikes of God, which are all revealed in Scripture. और परमेश्वर को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है ये हम परमेश्वर के वचन से जानते हैं. And he never changes. So when you read the Scriptures and we hear the word of God being spoken, we begin to grow in the knowledge of God. That's number one we spoke of last week. और पिछले बार हमने इसी बात किया था जब परमेश्वर वचन को जानने लगते हैं हम उसको उसके वचन से और अधिकाई से जानना शुरू करते हैं. I'm going to carry on from that and speak of other avenues by which we can grow in the knowledge of God. और दूसरे तरीके क्या है परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ने के, उस पे आज हम मनन करेंगे. And we walk with God by faith, and faith comes from hearing God's word. और हम जो है विश्वास से चलते हैं और विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है. As we hear the word of God and put the word of God to practice, we further grow in the knowledge of God. और जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं उस पे उसका अनुसरण करते हैं तो हम उसके ज्ञान में और बढ़ना शुरू करते हैं. In fact, the letter of Hebrews written to Jewish Christians who were actually following Judaism earlier, who realized that Jesus is their Messiah and they became believers in Jesus. और जो इब्रानी लोग थे उनको जो पत्री लिखी गई वो ये पहले परमेश्वर जानते और परमेश्वर के वचन को जब उन्होंने सुना तो उसको और जानने लगे. Old Testament was Judaism. पुराने नियम में जो था वो यहूदा धर्म था. And the New Testament is the following Christ, disciples of Christ.
In the first century, these people are known as the way. और जो नई पहले वो यहूदी धर्म से नाम से जाने जाते थे, नए नियम में हम देखते हैं वो जो मसीह लोग थे उनको उसके प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले उसके पीछे चलने वाले नाम से पहचाना गया। And it's known as the way. The Christian faith was known as the way. If you look at 24th chapter of Acts, verse 4 and 5, Paul testifies before the governor of Felix and says, I'm follower of the way. और हम अगर प्रेरितों का काम 24 उसकी चौथी और पांचवी आयत में देखते हैं तो वो कहता है कि हम उस जगत के सारे बलवा करने वाले और उसको पंथ के मुखिया पा गए, उसको पंथ कहा गया, उस पंथ के पीछे चलने वाले। And 15th verse, he testifies and says, I'm following the way, which these people call a sect. The Jews called the Christians as a sect, a Nazarene sect. और वो कहते हैं कि ये जो यहूदी लोग हैं उसको नाजरीन पंथ के पीछे चलने वाले उनको बोलने लगे। No, the Jews referred to Christians as the Nazarene sect. और यहूदी लोग जो थे वो जो मसीह लोग थे उनको नाजरी पंथ के पीछे चलने वाला बोलने लगे। Today we say Christianity or followers of Christ. और आज हम उसे मसीह धर्म बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले। And therefore the difference between Judaism and Christianity. और यही फर्क है यहूदी धर्म में और मसीह धर्म में। And we follow Jesus' teachings, which he qualified the Old Testament teaching. और हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के पीछे चलते हैं जो पुराने नियम की शिक्षाओं को पूरा करता है। We are disciples of Christ, and Acts 11:26 says, disciples are first called Christians at Antioch. और प्रेरितों का काम 11वें अध्याय की 26वीं आयत में देखते हैं अंतियोक में पहली बार जो लोग थे वो मसीह कहलाए। To the Jewish Christians, the letter of Hebrews is written. और जो ये जो इब्रानी की पुस्तक है ये यहूदी लोगों को लिखी गई पत्री है। Who have become followers of Jesus. They were earlier following Judaism, now they believe Jesus is the Messiah and they became Christians. जो पहले यहूदी धर्म के अनुसरण कर रहे थे पर अब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया था और वो अब मसीह कहला रहे थे। When they first became believers, they had a lot of problems. They had persecution and they lost the properties, but they joyfully accepted the confiscation of the property because they knew they had better rewards in heaven. और जब पहली बार वो मसीह लोग उनके ऊपर बड़ा सताव आया, उनकी संपत्ति उनके घर ले लिया गया और वो पर उसको बड़े आनंद से उन्होंने उसका सामना किया क्योंकि वो जानते थे कि इसके लिए उनके स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल उन्हें मिलेगा। But by the time the letter was written, they had become little lukewarm, they become little complacent, and they didn't have the same zeal for God as they had earlier. पर जब तक ये पत्री लिखी गई उस समय तक ये जो यहूदी लोग थे जो मसीह बन गए थे इनके अंदर वो जो जलन थी, उत्साह था, वो कम हो गया था। So to these people, the writer of the book of Hebrews writes in the 5th chapter of Hebrews, verses 12, 13, and 14. और हिब्रानियों के 5वें अध्याय की 12, 13, 14वीं आयत में वो लिखता है, Even though by this time you got to be teachers, you need elementary teachings all over again. वो कहते हैं समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या ये आवश्यक है कि तुम्हें परमेश्वर के बच्चों को आदि शिक्षा फिर से सिखाए? You need milk, not solid food. Anyone who is on milk being still fed, not according to the teaching of righteousness, not according to the teaching of righteousness. और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती क्योंकि वह बालक हैं। And verse 14 says, but solid food is for the mature who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. और 14वीं आयत में हम पढ़ते हैं, पर अन्न सियानों के लिए है जिनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। When new believers, we can only take in the milk of God's word. जब नए विश्वासी होते हैं तो परमेश्वर के वचन का हम दूध की तरह सेवन करते हैं। As you digest the milk, we slowly graduate into solid food. और जब हम दूध को हजम करने लगते हैं धीरे धीरे हम जो है अन्न को खाने लायक हो जाते हैं। What's the meaning of digesting the milk? In other words, applying it, take it to heart. And in the physical food you drink, you grow. As a child, you grow. और दूध को हजम करना मतलब हम परमेश्वर के वचन को जो शुरू शिक्षा उनको प्राप्त करते हैं उसको हजम करने लगते हैं और धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। Drinking the milk of God's word means applying the scriptures, basic teachings initially. Slowly we are qualified to take in solid food.
और हम परमेश्वर के वचन को यानी जो मुख्य आदि शिक्षाएं हैं उनको हम स्वीकार करते हैं और जब हम उसको पाते जाते हैं हम बढ़ते चले जाते हैं As और we, फिर हम इस लायक हो जाते हैं कि हम अन्न को खाने लायक हो जाए। as we become mature, we can take in solid food and can distinguish between good and evil. और जब हम सियाने हो जाते हैं तो हमारी ज्ञानेंद्रियां इस लायक हो जाती हैं कि हम भले और बुरे का भेद में को पहचानने में लायक हो जाते हैं। As we grow in the knowledge of God, we'll understand what is good in the eyes of God, bad in the eyes of God, as compared to what is good in the eyes of people, bad in the eyes of people. God's ways and man's ways are different. और जब हम अभ्यास इस लायक हो जाते हैं तो हम भले बुरे का परमेश्वर की नजर में क्या बुला है बुला उसको समझ लगते हैं, क्योंकि मनुष्य के और परमेश्वर की नजर में भला बुरे में फर्क है। And that is knowing God more and more, knowing the likes and dislikes of God. और ये है कि परमेश्वर की को क्या पसंद है नापसंद है उसको जानना, उसमें हम परमेश्वर की समानता में बदलते जाते हैं। Certain things when we become believers, we can't take in because it's too much for us to take. और कई बार हम जो है कई बातें ऐसी हो जाती हैं हमारे जीवन में जो हमारे को समझ नहीं आती और हमारे लिए बहुत ज्यादा होती हैं समझना। The Lord told his disciples in John 16:12, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को यूहन्ना 16 उसकी 12वीं आयत में बोला, I have many more things to tell you, more than you can now bear. मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। But when the counselor comes, he will lead you, the spirit of truth comes, he will lead you into all truth. परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा। Just like a baby cannot take in solid food, but has to first digest milk. Similarly, when you become new believers, we can't take in the solid food of God's word. और जैसे एक बच्चा जो है वो जब दूध पीता है तो वो अन्न नहीं खा सकता, उसी तरह से हम भी जो है विश्वास में जब शुरुआत होती है तो हम इतने परिपक्व नहीं होते कि हम परमेश्वर के उस अन्न को खा सकें। As we obey the elementary teachings of the Lord, slowly we can learn more and more and realize that certain things we thought were okay earlier, now it's not okay before God. और जब हम परमेश्वर के वचन में धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं तो हमें समझ आने लगता है कि जिन चीजों को हम पहले सोच रहे थे कि ये ठीक है भली हैं, वो वास्तव में बुरी हैं। And that's what it means by saying applying scriptures, thereby we are blessed. There's nothing more, no greater blessing than knowing God more and more. और इसी को कहते हैं परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अमल में लाना। परमेश्वर के वचन को जानने से आशीषित बात और कोई नहीं है। The book of James, chapter 1, from verse 22, we read. याकूब उसके पहले अध्याय की 25वीं आयत से आगे हम पढ़ते हैं। Do not merely listen to the word of God and so deceive yourselves. और कि 25 No, chapter 1 of James, verse 22 to 25. You read in Hindi. Yes, और 22 याकूब पहला अध्याय 22 से 25 हम पढ़ते हैं। परंतु वचन का चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देख कर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं पर वैसा ही काम करता है। When you just hear the word of God and don't do what it says, we are deceiving ourselves. तो जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और वैसा नहीं करते तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। Look intently perfect will give freedom and continue doing it, not forgetting what you heard. You'll be blessed in what we do. तो जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उस पर चलते चले जाते हैं तो जो हम करते हैं उस पर आशीष पाते हैं। And blessedness means happy, to be happy. और आशीष पाना मतलब खुश रहना। True joy and happiness is in the presence of God, in knowing God more and more. And by application of the Bible, we know Him more and more. Not just listening, but applying scriptures. और आशीष और खुश होना मतलब परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाना, और परमेश्वर के ज्ञान मतलब उसके वचन को अपने जीवन में अमल में लाना। So let's apply scriptures in daily life and we'll see how we are drawn close to God through His loving kindness. और हम रोज बरोज इस परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अमल में लाते जाएं और नजदीकी में परमेश्वर के बढ़ते चले जाएं। Now, as we obey God's word, we'll face difficulties in life. और ये बात है कि जब हम परमेश्वर के वचन को मानने लगते हैं, उस पर अनुसरण करने लगते हैं, तो हमें जीवन में समस्या आने लगती है। One of the amazing blessings of going through difficulties in the will of God is that we know Him that much more through difficulties.
और एक अद्भुत बात जो ये परमेश्वर के वचन की है कि जब हम समस्या में जाते हैं तो हम परमेश्वर को और ज्यादा जानने लगते हैं। Take the example of Job. उदाहरण के लिए अय्यूब का उदाहरण लें। When he went through the trials, he came to know God that much more. और अय्यूब जब समस्याओं में से होकर गया तो वो परमेश्वर को और अधिकाई से जानने लगा। In James chapter 5, 10 and 11, we read, James writes, और याकूब उसका 5वां अध्याय उसकी हम 10वीं और 11वीं आयतें पढ़ते हैं। brothers, as an example of patience in the face of suffering, take the prophets who spoke in the name of the Lord. ये भाइयों, जिन भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु के नाम की बातें की उन्हें दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। As you know, we consider blessed those who have persevered. देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। You heard of Job's perseverance and seen what the Lord finally brought about. Lord is full of compassion and mercy. तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है कि और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया, जिससे प्रभु का अनंत करुणा और दया प्रकट होती है। What did God finally bring about in Job's life? और प्रभु का वचन जो था अय्यूब के जीवन में वो बहुत आशीष लेके आया। No, what did God finally bring about in the life of Job? अब परमेश्वर अय्यूब के जीवन में क्या लेके आया अंत में? When he first heard about everything being lost in one day, he falls down and worships God. और जब उसने पहले दिन एक ही दिन में सब कुछ खो दिया, वो परमेश्वर के सामने गिर के उसकी आराधना करता है। The very first chapter of Job describes how in one day he lost all his possessions. और अय्यूब के पहले अध्याय में पढ़ते हैं कैसे एक ही दिन में उसने सब अपनी धन संपत्ति को खो दिया। 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, 500 donkeys, 7 sons, 3 daughters. All he lost in one day. 5,000 भेड़ें और ऊंट, उसके बच्चे, उसकी सब संपत्ति एक ही दिन में खो गई। What did he do? Job 120 says, when he heard the news, he fell down and worshipped God. और अय्यूब क्या करता है ऐसे परिस्थिति में कि वो परमेश्वर के सामने गिर के परमेश्वर को दंडवत करता है। His friends came and advised him. 3 of them spoke rightly about God, or wrongly about God. 1 spoke rightly about God. He went through a lot of trials, Job. और उसके जो मित्र आए उसमें से 3 उसके विरोध गलत बात बोलते हैं, एक सही बात बोलता है और उसकी पत्नी भी गलत बोलती है, पर वो परमेश्वर के सामने उसको अपसिद्ध बना रहता है। What did God finally bring about in Job's life? परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में अंत में क्या किया? Most people will say 7,000 sheep became 14,000 sheep. लोग कहेंगे 7,000 जो भेड़ें थी वो 14,000 भेड़ें हो गई। 3,000 camels became 6,000 camels. 3,000 ऊंट जो थे वो 6,000 हो गए। 500 yoke of oxen became 1,000 yoke of oxen. और 500 बैल की जोड़ी जो थी वो 1,000 बैलों की जोड़ी हो गई। 500 donkeys became 1,000 donkeys. और 5,000 गधियां वो 1,000 गधियां बन गए। Again he got 7 sons and 3 daughters. और उसके बाद उसको 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। This time they are more beautiful, the daughters. और ये लिखा है कि उसकी बेटियों के समान कोई और सुंदर, उस इलाके में कोई सुंदर लड़की नहीं थी। And people said, this is what God finally brought about in Job's life. और लोग बोलने लगे कि अय्यूब के जीवन में परमेश्वर अंत में ये सब चीजें लेके आया। But there's something far more profound that happened through the Job's sufferings. पर उससे भी एक बड़ी बात अय्यूब के जीवन में उसके दुखों के कारण से हुई। When he went through all the trials, in 19th chapter of Job, 25-26, he says, I know my Redeemer lives, and at the end of the earth stand upon the earth. After my skin has been destroyed, in my flesh I will see my God. और अय्यूब 19 उसकी 25 में ऐसा कहता है, मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और पृथ्वी में अंत तक खड़ा होगा। After my skin has been destroyed, in my flesh I will see God. Verse 26. और 26 आयत में कहता है, और अपनी खाल को के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। What's it mean in my flesh? While living in this world, I have an experience of God. और शरीर में होकर का क्या मतलब है कि इस संसार में रहते हुए मेरे को परमेश्वर का अनुभव हुआ। What happened in the last chapter of Job? और अय्यूब के आखिरी अध्याय में क्या हुआ? After God spoke to Job and asked him many questions, not one of them he could answer.
और परमेश्वर ने उससे बहुत सारे प्रश्न पूछे, अय्यूब एक का भी उत्तर नहीं दे पाया। Because God, I spoke of too much when you asked me a question. I realized I spoke too much about you. और वो कहता है, प्रभु आपने मेरे से प्रश्न पूछा, पर मैंने आपके विरुद्ध में बहुत ज्यादा आपसे बातें कर दी, He's बहुत very बुरा बोल दिया। he's very convicted that he didn't speak rightly about God when he went through trials. और जो परीक्षा में से होके तो परमेश्वर के बारे में उसने बहुत सारी बातें ठीक नहीं बोली। And then 42nd chapter of Job, verse 5, he says, और अय्यूब 42 उसकी 5वीं आयत में अय्यूब कहता है, My ears had heard of you, but now my eyes have seen you. मैं कानों से तेरा सुसमाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। What God brought about in Job's life primarily was a revelation of God to Job. और परमेश्वर ने वास्तव में उसके जीवन में जो काम किया वो ये था कि अय्यूब को अपना दर्शन दिया। That's the greatest thing that happened in Job's life. Through trials, through suffering, he came to know the Lord that much more. और ये सबसे अद्भुत बात अय्यूब के जीवन में की, जब परीक्षा में से होके गया, परमेश्वर को और ज्यादा जाना उसने। Now we know why the Apostle Paul, New Testament, writes to the Philippians in chapter 3. He writes to Philippians in verse 10. और इसीलिए पौलुस जो है फिलिपियों के 3 अध्याय की 10वीं आयत में लिखते हैं, I want to know Christ and the power of the resurrection, fellowship of sharing in his suffering, become like him in his death, and somehow attain the resurrection of the dead. वो 10वीं आयत में कहता है, और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। I want to know Christ. Already he knew Christ, but he wants to know more and more. तो कहता है मैं प्रभु को जानना चाहता हूं, जबकि प्रभु को जानता था, पर वो उसको है कि और अधिक जानूं। And to have fellowship in his suffering. In other words, I want to go to trial and thereby have fellowship with him, thereby know God that much more. तो कहता है कि मैं प्रभु को जानता हूं, पर मैं उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को जानना चाहता हूं, उसके दुखों में सहभागी होना चाहता हूं, ताकि मैं उसको और अधिकाई से जानूं। In other words, through trials, we grow in the knowledge of God. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब हम दुखों में जाते हैं, परेशानी में से जाते हैं, हम परमेश्वर को जानना और अधिक जानना शुरू करते हैं। God allows us to go through trials that we depend upon him and thereby know him that much more. और परमेश्वर में दुखों में से जाना चाहता है ताकि हम उस पर निर्भर होके उसको और अधिकाई से जानना शुरू करें। When everything goes well with us all the time, we can tend to forget God. जब हमारे जीवन में सब कुछ ठीक-ठीक होने लगता है, तो हमारे अंदर ये भावना आने लगती है कि हम परमेश्वर को भूलने लगते हैं। The book of Hosea, chapter 13, verse 6, we read. होशea 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत में हम पढ़ते हैं। Chapter 13, verse 6, God says about his people, when I fed them, they were satisfied. When they satisfied, they became proud. Then they forgot me. और होशea 13 अध्याय उसकी 16वीं आयत में लिखा है, परंतु जब इजरायली चराए जाते थे और वे तृप्त हो गए, तब तृप्त होने पर उनका मन घमंड से भर गया, इस कारण वे मुझको भूल गए। God knows that we are all dust. He remembers that we are a very fickle-minded people. When we keep on getting blessed by God, we will forget God. He allows to go through difficulties for us to depend upon God. और परमेश्वर जानता है कि हम मनुष्य हैं, और जब हमारे पे सब कुछ ठीक होता है तो हम परमेश्वर को भूलने लगते हैं। इसलिए वो हमारे को दुखों में से, कलेशों में से जाने देता है, ताकि हम उसको स्मरण करें, उसको और अधिकाई से जाने। And that's why he allows us to go through trials, that in that trial we depend upon him, and always remember he's in us, with us in our trials. और हमें इसलिए परमेश्वर जाने देता है ताकि वो हम उसको अधिकाई से जाने, और ये बात हमें हरदम याद रखनी चाहिए, जब हम दुखों क्लेशों में जाते हैं तो हमारे साथ, हमारे अंदर हमारे साथ होता है। When we love the word of God, we'll obey the word of God. जब हम परमेश्वर के वचन से प्रेम करेंगे तो उसकी आज्ञा मानेंगे। In fact, when we love God, we'll love his word. बल्कि जब परमेश्वर से हम प्रेम करेंगे तो उसके वचन को भी प्रेम करेंगे। When we love his word, we'll obey his word joyfully. और जब उसके वचन को प्रेम करेंगे तो हम उसके वचन की आज्ञा भी मानेंगे बड़े आनंद के साथ। And we'll have difficulties when we follow the Lord. और जब हम परमेश्वर के पीछे चलने लगेंगे तो हमें समस्याएं भी आएंगी। God's word has instructions. परमेश्वर के वचन में हिदायतें हैं, It has promises. उसमें वायदे हैं, And the standards of God for us. और परमेश्वर के स्तर हैं जो हमारे लिए परमेश्वर ने रखे हैं। The psalmist in Psalm 119, according to Bible scholars, was Ezra. और भजन 119 जो है बाइबल अध्ययन वाले बताते हैं कि एजरा ने ये भजन लिखा था। And Ezra loved God's word. और एजरा परमेश्वर के वचन से बहुत प्रेम करता था। In Psalm 119, verse 167, he writes, I keep your statutes because I love them greatly.
और वो भजन 119 उसकी 167वीं आयत में कहता है, मैं तेरी चेतावनियों को जी से मानता हूँ और उनसे बहुत प्रीति रखता आया हूँ। And verse 165, the same psalm, he says, great peace have they who love your law, nothing will make them stumble. और 165वीं आयत में वो कहता है, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। Of course, he had peace when he obeyed God, but he also had difficulties. और उसके मन में शांति भी थी, जबकि उसको बड़ी समस्याओं में से जाना पड़ रहा था। As believers in Christ, we go through difficulties, but we have peace in those difficulties, just like Ezra had. और जब हम विश्वासी लोग जो हैं, हम समस्या में से जाते हैं, पर इन समस्या में जाते हैं, उस समय हमारे को बड़ी शांति होती है। In verse 75, it says, when he went through difficulties, it says, in faithfulness, O Lord, you have afflicted me. और 75वीं आयत में कहता है, परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता में तूने मुझे सताया, मेरे को दुखों में से जाने दिया है। In other words, you are so faithful to me that you afflicted me. इसका मतलब ये है कि प्रभु तू इतना विश्वास योग्य है कि तूने मुझे दुख दिया है। So different from Christian response to suffering. और वो कितना फर्क है ये बात, जो हम मसीह लोग जब सतावट में जाते हैं, उस बात से इसमें कितना फर्क है। When Christians obey God's word and they face difficulty, they question God. Why me, Lord? I'm obeying you. I'm going to fellowship. I'm attending all the meetings. I go to church regularly. Why am I having this trouble? I'm obeying you. Why me? और बहुत से मसीह लोगों का ये होता है कि प्रभु ये समस्या मेरे पास क्यों आ रही है, मैं तो सभा में जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, तेरे सब लोगों से संगति में रहता हूँ, और फिर भी मेरे पास ये समस्या क्यों आ रही है। I am faithful to you, but you're not faithful to your promises to me. प्रभु मैं तो आपके साथ विश्वास से चल रहा हूँ, पर आप अपने वायदों को पूरा नहीं करे विश्वास योग्यता से। Whereas look at what Ezra writes. पर देखिए एजरा क्या कहता है, In faithfulness, O Lord, you have afflicted me. Because you're faithful to me, I'm afflicted. कि तूने अपनी सच्चाई के अनुसार मुझे दुख दिया है। इसका मतलब प्रभु तूने अपनी सच्चाई के कारण से मुझे दुख दिया है। How could he say that? Look at verse 92. और ये ऐसा क्यों कह सका? हम 92 आयत को अगर हम देखें, There he writes, if your law had not been my delight, I would have perished in my affliction. कहता यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो मैं दुख के समय नाश हो जाता। So why did the affliction come? Why did God allow him to be afflicted? तो परमेश्वर ने इसके ऊपर दुख क्यों आने दिया? Verse 71 he writes, 71वीं आयत में वो लिखता है, it was good for me to be afflicted that I may learn your decrees. कि मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भलाई हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। In those difficulties, I knew you that much more. I knew your word that much more. और अपने दुखों में मैंने उतना ही तेरे को जाना, उतना ही तेरे वचन को जाना। In other words, he knew God that much more through difficulties, and therefore he says, good for me to be afflicted. I can learn more of you. और दूसरे शब्दों में वो जब दुखों में से गया, उसने परमेश्वर के वचन को और अधिक जाना, और वो कह रहा कि परमेश्वर मैंने इन दुखों के कारण से आपको भी अधिक जाना। Also, he writes about how he was comforted in those difficulties. और ये भी बताता है कि कैसे वो दुखों में से जब गया तो कैसे उसको सांत्वना मिली। In verse 50, he writes, my comfort in my suffering is this, your promise, your word preserves my life. 50वीं आयत में कहता है, मेरे दुखों में मुझे शांति उसी से हुई क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। दुखों में शांति, in suffering I'm comforted, I'm having peace. और वो कह रहा है कि इन दुखों में मुझे शांति मिली है। So holding on to the promise of God. और वो परमेश्वर के वचन को थामे रहने के कारण से। In short, today we are called to obey the teachings of the Lord Jesus Christ. We'll face difficulties, and by holding on to promises, we will rise above difficulties and grow in the knowledge of God. तो हमें जो है परमेश्वर के वचन को थामे रहने के लिए बुलाया गया है, और जब हम दुखों में जाके परमेश्वर के वचन को थामे रहते हैं, तो परमेश्वर हमारे को उन दुखों के कारण से हमारे को और अधिक विश्वास में बढ़ाते चाहते हैं। The fourth way by which our knowledge of God increases is when we obey God's word, we know Him that much more, and we'll have the love of God in us. तो चौथी बात जिससे हम परमेश्वर को और अधिक ऐसे जानते हैं कि परमेश्वर को जो हम उसके वचन को प्रेम करते हैं और परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसका ज्ञान हमारे अंदर और बढ़ता चला जाता है। In John 17:26, Jesus says to the Father in heaven, यूहन्ना 17 उसकी 26वीं आयत है, प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गीय पिता के बारे में बोलते हैं, I have made you known to them, and I will continue making you known to them, that the love you have for me will be in them, and I myself will be in them. और मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था
वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। So as we grow in His knowledge, we'll have the love of God in us, love which is destined for other people. Other people benefit from that love. और जब हम परमेश्वर के बारे में जानते हैं तो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर बढ़ता है और वो प्रेम जो है हमारे जीवन से दूसरों पे भी प्रकट होता है। When we love our enemies, love everybody around us without exception, then what happens is that love will result in more knowledge. और जब हम अपने वैरियों से जो हमारे से हमें परेशान करें उनसे प्रेम करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है कि वो हमारा ज्ञान बढ़ता है उससे। The Apostle Paul wrote to the church in Philippi and he says, may your love abound more and more in knowledge and depth of insight. Philippians 1:9. और फिलिपियों 1:9 में कहता है कि तुम जो है अपराध करते कि तुम्हारा प्रेम और ज्ञान सब प्रकार के विवेक सहित और भी अधिक बढ़ता जाए। So by knowing God, we have God's love in us. तो जब परमेश्वर को हम जानते हैं तो हमारा परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर होता है। When we love others, that love will result more and more in knowledge of God. We know God that much more through loving even enemies. तो जब हम दूसरों को प्रेम करते हैं, खासकर जो हमारे वैरियों को जो हम प्रेम करते हैं, उससे हमारा परमेश्वर के और प्रेम और उसका ज्ञान और अधिक बढ़ता है। The best way to understand this is to actually do it. और इसका सबसे आसान और अच्छा तरीका जो है वो है इसको करके हमें सीखें। Otherwise, it's only knowledge, it's only deceiving ourselves. Ask God love for loving enemies, and then you grow in His knowledge. You become very, very intimate and close to God. तो ये अगर हम सिर्फ से सीख लेते हैं तो ये हमारे सिर्फ ज्ञान की बात होगी, इससे हमारे को कुछ मिलेगा नहीं। पर इसको अगर हम करके देखेंगे, करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए, तो हम इसमें उसके परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ेंगे ऐसा करके। And we'll be able to have intimate fellowship with God and manifest His love and know Him more and more. और ऐसा करके हम परमेश्वर ज्ञान को और गहराई से जानेंगे और उसको और अधिक प्रेम करने लगेंगे। Going back to Job, we read about how when Job went through all the difficulties. 29th chapter of Job in verse 4, he writes. और अय्यूब के जीवन से हमने देखा कि सारी समस्याओं में से गया और अय्यूब 29 उसकी 4थी आयत में हम पढ़ते हैं। Before he came to know God even more intimately. इससे पहले कि परमेश्वर को वो और घनिष्ठ रिश्ते से जान सका। That he writes, "Oh, for the days when I was in my prime, when intimate friendship with the Lord blessed my home." कहता मैं तो वे तो मेरी जवानी के दिन थे जब ईश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर प्रकट होती थी। He says, mitrata, friendship with the Lord, intimate friendship with the Lord blessed my home. Oh, for those days when he was intimate with God, he says. तो कहता है कि कितना वो मेरी जवानी के दिन कितने सुंदर वो दिन थे जब परमेश्वर से मित्रता मेरे डेरे पे प्रकट होती थी। So you can imagine how it must have been for him after he came to know the Lord even more personally. 42nd chapter of Job verse 5. All the more intimate with God, and his home must have been blessed once again. और जब वो आखिर में इस बात परमेश्वर को और अधिकाई से कष्टों में से आके जानता है तो वो उसको और कितनी अद्भुत तरीके से उसको जानता होगा और कितना उसके और प्रेम परमेश्वर से उसका बढ़ गया होगा। Loving God and loving God's people, loving everybody for that matter, will result in even more knowledge of God and intimate friendship with the Lord. और जब परमेश्वर को परमेश्वर के लोगों से और दूसरे लोगों से प्रेम करते हैं तो उससे हमारा परमेश्वर से हमारा प्रेम बढ़ता है और परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता और अधिक हो जाता है। The last point, the fifth point I want to add. और जो पांचवी बात है, आखिरी बात जो है वो बताना चाहते हैं। As we share about Christ to people, as we share the gospel and share a knowledge of Christ, we grow in the knowledge of God. और जब हम परमेश्वर के वचन को उसके सुसमाचार को दूसरों से बांटते हैं तब भी हम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते चले जाते हैं। As we make Jesus known, we will know Jesus that much more. जितना हम प्रभु यीशु मसीह को दूसरों को के बारे में बताते हैं उतना हम परमेश्वर के बारे में और प्रभु यीशु मसीह के बारे में और जानने लगते हैं। The nature of God is whatever He gives to us, when we share with people, He'll give us more. और परमेश्वर के वचन की परमेश्वर की चीजें जो हमें वो देता है उसकी खासियत ये है कि जितना हम उसको बांटते हैं हम उसको और ज्यादा हमारे अंदर बढ़ता है वो। In 2 Corinthians chapter 9 verse 10, in the context of financial blessings, Paul writes. दूसरा कुरिन्थियों के 9वें अध्याय में पौलुस लिखता है। Verse 10, 9 chapter verse 10. हाँ, दूसरा कुरिन्थियों 9:10 में वो कहता है, "You supply seed to the sower and bread for food, will supply increase the store of seed." जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा। The context of that verse is actually what are resources God gives you, financial resources. When you share with people what gives you seed, you'll get more seed.
उसमें कि पूरा है कि और उसे फलवंत करेगा और तुम्हें धर्म के फलों में बढ़ाएगा। तो ये है कि जो बीज परमेश्वर हमें देता है, जब उसको हम बोते हैं, वो परमेश्वर हमारे को और फलवंत करता है और बढ़ाता है। A farmer has seed, he sow the seed and God give more seed to sow. परमेश्वर जो है, किसान के पास बीज है, परमेश्वर वो उसको बोता है, और जब वो बोता है, परमेश्वर उसको और बीज देता है कि वो और बोए। The context of that verse is financial blessings, because we should not be frugal in our giving. Give generously. Don't give little. Give under. Don't give under compulsion. Give cheerfully. और ये बात जो है, ये धन के संबंध में है। इसका मतलब ये है कि जब परमेश्वर हमें देता है, तो हमारे को उसको थाम के नहीं बैठे रहना, उसको बड़ी आनंद के साथ उसको बांटना है, दूसरे लोगों के साथ भी बांटना है। That's in the context of sharing gospel. Sorry, the financial blessings. और ये संदर्भ है जो आर्थिक धन संपत्ति मिलती है उसको बांटने की। But that reveals the nature of God. पर ये परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करता है। God's nature never changes. परमेश्वर का जो स्वभाव है वो कभी बदलता नहीं है। Whatever He gives us, when we share, He'll give us more. जो हम परमेश्वर हमें देता है, हम उसको बांटते हैं, परमेश्वर हमें और अधिकाई से देते हैं। The same way we have received the revelation of Christ as the Savior, we share that with people, we'll grow in the knowledge of our Savior. और वही है, जब हम परमेश्वर के का ज्ञान जो हमें मिला है, परमेश्वर की ओर से हमें मिला है, जब उसको हम बांटते हैं, तो हम उसके प्रकाश में और अधिक बढ़ते जाते हैं। So please keep sharing God's word, sharing about this to people. In that process, you'll know God's word that much more. You'll know God that much more. और जब हम परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को लोगों से बांटते हैं, तो हम उसको और जितना जानते हैं, परमेश्वर हमारे को और अधिकाई से हमारा ज्ञान परमेश्वर की ओर और बढ़ता चला जाता है। In Philemon, in verse 6, Paul writes, और फिलोमियन की 6ठी आयत में हम पढ़ते हैं, it's only one chapter, so 6th verse it is, हाँ, एक ही अध्याय है, उसकी 6ठी आयत में हम पढ़ते हैं, there Paul writes, I pray you be active in sharing your faith, that you may have a full understanding of every good thing we have in Christ. कहता है कि तेरा विश्वास में सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। If you want to know Jesus more and more, grow in His knowledge, share about Jesus with people. तो अगर आप प्रभु के बारे में और प्रभु को और अधिकाई से जानना चाहते हैं, तो जो आपके पास है, उसको परमेश्वर के वचन को और बांटे। There's nothing greater in life than knowing God and knowing Him more and more. और अपने जीवन में परमेश्वर को और अधिकाई से जानने के अलावा और कुछ इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। In closing, we'll read one particular verse. The Apostle Paul wrote to the church in Ephesus, in Ephesians chapter 1, verse 17. और हम एक आयत को देखेंगे जो इफिसियंस की पत्री को पौलुस लिखता है, इफिसियों पहला अध्याय उसकी 17वीं आयत में। Do you read in Hindi? कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में और ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। That you may know Him better. That He'll give you visible revelation, that you may know Him that much more. So He's praying for the church to know the Lord that much more. और ये है कि हम उसके प्रकाश को, ज्ञान को, और इसलिए वो प्रार्थना कर रहा है पौलुस कि ये जो है परमेश्वर की पहचान, उसके ज्ञान और प्रकाश में बढ़ते चले जाएं। बढ़ते चले जाएं. That means you grow the knowledge of God. ताकि वो बढ़ते चले जाएं, उसके परमेश्वर ज्ञान में बढ़े। Let's not be complacent about knowledge of God. Say, Lord, I want to know you more and more. I hunger for you, Lord, and I thirst for you, Lord. तो हम जो परमेश्वर ज्ञान है उसी में संतुष्ट होकर ना रह जाए, पर हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मैं तेरे को और अधिकाई से, मेरे को भूख है, प्यास है आपको जानने की। May God give us the passion to know Him more and more and be a blessing as He blesses us. परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हमारे को उसको जानने की हमारे अंदर और लगन और जिज्ञासा हो, और जितना हम उसको जाने, हम उसको और अधिकाई से बढ़ते चले जाए उसके ज्ञान में। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष